Class in the series of case studies that I'm taking up for Term 1 revision from the site, CBSE site. This is case study number 3. Case study 2 we did in the earlier class. Just go through it, because when I saw it, it wasn't clear, and that's why I'm putting it once again for reading it. So in this we see that we are doing case study 3, and if you go through the CBSE sample paper for the first term, you'll find out that the last section, that is C section, the last question itself is based on, the last few questions are based on a case study that is given, and it is very important, and you can get full marks if you just pay a little more attention to it. And in today, this is case study number 3. Okay, so here we go. I want you to see this. As I read this hypothetical text of case study number 3, you can take a screenshot and follow me. It's about sustainable development. So read the following hypothetical text and answer the given questions. So hypothetical means just a given from somewhere. Sustainable development is the synonymous in the minds of many with the color green, and for good reasons. So sustainable development मतलब green development, मतलब कि environment को देखते हुए जब आप development करते हो. So you see green, color green दिमाग में आता है. 20 years ago, at the first Earth Summit at Rio de Janeiro in Brazil, world leaders set out what today is conventional wisdom. Social and economic human progress cannot be divorced from environmental protection unless both are advanced together, both will flounder together. तो 20 साल पहले की बात है जब पहला अर्थ समिट, द फर्स्ट अर्थ समिट जो हुआ था रियो डी जेनेरो में, जो ब्राज़ील में है का कैपिटल, तो वहाँ पे सारे वर्ल्ड लीडर्स आके मिले थे, और उन्होंने उस कन्वेंशन में एक विजडम, उन्होंने मतलब ये सोचा और समझा कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स प्रोग्रेस करना चाहते हैं ना, सोशली या इकोनॉमिकली, और तब ये हो ही नहीं सकता एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बगैर, और अगर आपको ह्यूमन प्रोग्रेस चाहिए तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है, इकट्ठे होनी चाहिए, और अगर इकट्ठे एडवांस करते, अगर इकट्ठे चलेंगे तो चलेंगे, नहीं तो फ्लाउंडर मीन्स दोनों ख़त्म हो जाएंगे, दे विल फ्लाउंडर टुगेदर, पेरिश हो जाएंगे. नाउ सेकंड स्टैंडर्ड देखो, सेकंड पैराग्राफ. Sustainable development is as much about health, education and jobs as it is about the ecosystems. तो कहते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम कहते हैं, जो ग्रीन जीडीपी जिसको हम कहते हैं, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना, कि वो जो है इकोसिस्टम, मतलब जो इकोलॉजी है उसको देखना होता है, और साथ साथ आपने हेल्थ, एजुकेशन और जॉब्स को देखते हुए इकोलॉजी को भी संभाल के रखना है. It is about ever widening inclusion and movement away from decisions that erode democratic space and do not address social inequality, intolerance and violence. और ये जो है, ये इतना बड़ा मुद्दा है, और इसके तरफ जाना है, एंड यू हैव टू, और किन के अगेंस्ट जाना है, कहाँ से हटना है, दैट जो डेमोक्रेटिक स्पेस करता है, जो सोशल इनइक्वालिटी और इंटॉलरेंस एंड वायलेंस की ओर जाना है, इनसे हटना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अबाउट चेंजेस दैट ट्रांसफॉर्म impoverished people, communities and countries into informed, educated, healthy and productive societies. तो बताते हैं इस पैराग्राफ में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. चेंजेस, ऐसी चेंजेस जो कि गरीब लोगों के, गरीब एज इन पैसे नहीं और दिमाग से भी गरीब होते हैं, इम्पोवरिश्ड पीपल, फिर कम्युनिटीज़ जो इकट्ठे रहते हैं, और इवन कंट्रीज़,
इनको क्या कहाँ किसकी ओर लेके जाना है? इन्फॉर्म्ड, जिसमें दे आर नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशन दो, एजुकेशन दो, हेल्थ फैसिलिटीज़ दो, और प्रोडक्टिव सोसाइटीज़, ताकि वो पॉजिटिव सोचें, प्रोडक्टिव सोसाइटीज़ बने. इट इज़ अबाउट वेल्थ क्रिएशन दैट जनरेट्स इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी. कि जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, साथ साथ आपने इक्वालिटी सबको देनी है, सबको अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए. ये नहीं कि पॉकेट्स ऑफ पीपल आर गेटिंग डेवलप्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए. Sustainable development is about consumption and production patterns that respect planetary boundaries. It is also about increasing tolerance and respect for human rights at all levels. तो बताते हैं कि अब sustainable development क्या है? कि consumption और production patterns तो हैं ही हैं, that respect planetary boundaries, जो हमने boundaries बनाई हैं उसको respect करते हुए आपने consumption और production करना है. लेकिन इट इज़ ऑल्सो अबाउट इंक्रीजिंग टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एट ऑल लेवल्स. और साथ साथ जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हो, आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, टॉलरेंट होना पड़ेगा. डोंट बी अ बिगॉट, मतलब हमने नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट है हर एक ह्यूमन बीइंग के राइट्स, राइट टू लिव, राइट टू, बेसिकली इट्स राइट टू लिव एंड टू स्पीक एंड coexist peacefully. ये सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, just go through them, ये सारा रिस्पेक्ट करना चाहिए at all levels. Building on human development legacy that oriented with economists like Amartya Sen and Mahbub ul Haq and was captured by the first Human Development Report in 1990. और ये कहते हैं कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट लेगेसी है ना, जो इन्होंने डिसाइड की है और जो सामने आई, जैसे लोगों, जैसे हमारे अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, इन्होंने जो बताया है और जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी वगैरह ने बनाई थी, यूनाइटेड नेशन से आई थी 1990, उसमें इनकॉर्पोरेटेड है. तो आपको ये पढ़ना चाहिए. एनीवेज राइट नाउ ये नहीं सोचना पड़ना, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपने सोचना जैसे जैसे फटाफट पढ़ना होता है. फिर आपने देखा है United Nations Development Program UNDP has long promoted alternative approaches to measure human progress along with Human Development Index. तो इन्होंने UNDP ने एक अलग सा एक नज़रिया दिखाया, ऑल्टरनेटिव अप्रोच दिखाया, जिससे उन्होंने बताया कि हम ह्यूमन प्रोग्रेस को किस आधार पे हम उसको माप सकते हैं, और उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है. सो टुडे वी आर बिल्डिंग ऑन दिस लेगेसी ऑफ एक्सप्लोरिंग हाउ टू एडजस्ट द इंडेक्स टू रिफ्लेक्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, so that government and citizens might better track real progress towards truly sustainable development. तो ये कहते हैं कि आज के दिन हम क्या कर रहे हैं, ये जो लेगेसी जो है इन्होंने 1990 से शुरू की थी कि हाउ टू, ये वाला इंडेक्स जो है कि साथ हम एनवायरनमेंट को भी हम सस्टेन कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, ताकि हम रियल प्रोग्रेस कर सकें और हमारा जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो हमारे साथ चले, एंड इट डज नॉट गो टू हेल. सो ये हमारा कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो भी कंट्री है, जहाँ भी है. सो लेट्स जस्ट टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 बताता है कि which of the following is not one of the ways to attain the goal of sustainable development. इसमें से they've asked you choose the correct alternative. पहला है use of cleaner fuels, second है use of traditional knowledge and practices, third है spreading awareness, and D है sticking to methods to promote inequalities. देखो आपने जैसे ही पढ़ा, यूज़ ऑफ क्लीन अप फ्यूल सही है, ये तो होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस सही है, क्योंकि इसमें अगर ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस करोगे तो आपका एनवायरनमेंट सही रहेगा. ठीक है. एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ये भी सही है. और
ये सही नहीं लग रहा है जी. स्टिकिंग टू मेथड्स टू प्रमोट इनइक्वालिटीज़. तो ये तो आपने जब अभी भी पढ़ा कि आपको सबके लिए प्रोग्रेस होना, सोशल इनइक्वालिटी को हटाना है. सो स्टिकिंग टू मेथड्स ऑफ टू प्रमोट इनइक्वालिटीज़ गलत है. सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स में ये बताना है आपने. सेकंड क्वेश्चन कि rather, as per the UNDP report, education and health are the broader issues of human development. तो ये क्या है? ट्रू है ना? ट्रू है. ये तो अभी हमने पढ़ा है. क्वेश्चन 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आ क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड. चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. आपने इसमें से करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है. ठीक है, तो यस, डायरेक्टली हो गया. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड, दे गो इन द सेम डायरेक्शन. अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, इकट्ठे इकट्ठे चलेंगे, नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. और क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपने देखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, assertion A and reason. Assertion A, sustainable development is about changes that transform impoverished people, communities and countries into informed, educated, healthy and productive societies. ठीक है, ये सही लग रहा है. वैसे पढ़ो तो चलो रीज़न भी देखते हैं. Sustainable development advocates about wealth creation that generates socio-economic equality and opportunity. ये भी सही लग रहा है बिकॉज तो रीज़न भी मोरलेस हमें तो सही है ना. यस, तो लेट्स जस्ट टेक रीज़न, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. ए, बोथ assertion and reason are true. Both assertion, I think let's just take A. दोनों ही सही लग रहे हैं, दोनों सही है. ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस, read it 5 times the same thing and then do this question once again.